بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز کے نیو ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں سورۃ الغاشیہ کی 17 to 26 نمبر آیت آپ کی اسکرین پر ہے۔ کیمل کے بارے میں خصوصی طور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور اس کائنات سیریز کا جو مین پرپز ہے ٹو نو یور کریٹر تھرو ہز کریشن، اس کی کریشن کو دیکھ کر ہم اپنے کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا ان لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کس طریقے سے اس کو بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھا کس طریقے سے اس کو بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا کس طریقے سے وہ گاڑ دیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھا کس طریقے سے اس کی جو سطح ہے ہموار کی گئی؟ فذکر انما انت مذکر، پس اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے، بے شک آپ ڈرانے والے ہی ہیں، تذکیر کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروگا نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، اب جو اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے، نہیں مانتا، وہ تو پیچھے ہٹنے والا ہے اور کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے آپ کی دعوت سے۔ پس فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو آپ اللہ کے عذاب کا جو عذاب اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ دینے والا ہے۔ ان الینا ایابہم، ہم بے شک ان لوگوں کی جو واپسی ہے ہماری ہی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایٹ دی اینڈ ان کو ہماری پاس آنا ہے۔ دین ثم ان علینا حسابہم، دین ان کا جو لاسٹ میں حساب لینا ہے وہ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو چار چیزوں پر مکے والوں کو دعوت دی گئی: اونٹ کس طریقے سے اس کو بنایا گیا، آسمان کس طریقے سے اٹھایا گیا، پہاڑ کس طریقے سے گاڑے گئے، اور زمین کس طریقے سے ہموار کی گئی۔ یہ چاروں چیزیں مکے والوں کی آبزرویشن میں تھی۔ اونٹ پر وہ سفر کرتے تھے، وہ ان کا ایک مقامی جانور تھا، سفینۃ الصحرا جسے کہا جاتا ہے۔ اینڈ دین آسمان تو ہر کوئی دیکھتا ہے، زمین ہر کوئی ایکسپلور کرتا ہے، دیکھتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اور پہاڑ بھی ہر کوئی دیکھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، ان کے آبزرویشن میں تھی۔ دین ان کو بتایا گیا کہ اونٹ کی طرف دیکھو، پہلے ہم دیکھیں گے اونٹ، ابل کہتے ہیں اونٹ کو ناکا بھی کہا جاتا ہے، اونٹنی کو ابل اور جمل، کئی نام ہیں۔ عربک لینگویج چونکہ ایک ریچ لینگویج ہے، چونکہ عربک بولنے والے جو تھے ان کو جو چیز جتنی محبوب ہوتی تھی اس کے اتنے ہی زیادہ نام رکھتے تھے۔ دیٹ از وائی کیمل کے بھی کئی سارے نام انہوں نے رکھ لیے تھے۔ یہ آپ کی اسکرین پر اونٹ ہے، کیمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک لاجواب کریشن ہے۔ لمبی سی گردن، لمبی سی ٹانگیں، اور بالکل جو مویشی کیٹیگری ہے، گھوڑے وغیرہ، ان کے جیسا ڈھانچہ، اور اوپر کی طرف ایک بڑی سی کوہان، بڑا سا منہ، بڑے سے کان، چھوٹی سی دم۔ اوور آل دس از کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ، سفینۃ الصحرا۔ اس کو دیکھیں گے اور کس طریقے سے اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، کس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس احکم الحاکمین کی حکمت کے تقاضے ہیں جس طریقے سے اس کو بنایا ہے۔ اب یہ ڈیزرٹ ہے، اونٹ چل رہے ہیں، اور ڈیزرٹ کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کو ڈیزرٹ میں جانا ہوتا ہے تو گائیڈ کو ساتھ لینا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ اس میں راستے نہیں بنے ہوتے۔ جہاں سے انسان نے سفر کیا ہوگا وہ گھوم پھر کے پھر اسی جگہ واپس آ سکتا ہے۔ انسان چل رہا ہے، اونٹ بھی چل رہے ہیں، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، یہ جو سینڈ ہے، ریت ہے، اس کے اندر یہ اونٹ دھنس نہیں جاتے۔ انسان کے پیر دھنس جاتے ہیں، اونٹ کے نہیں دھنستے، حالانکہ اونٹ بھاری ہے، انسان کے مقابلے میں ہیوی ہے، لیکن اس کے جو پیر ہے وہ ریت کے اندر نہیں دھنستے۔ وائی؟ ان سارے سوالات کے جوابات لیسن میں آگے جا کر ہم دیکھنے والے ہیں۔ یہ اونٹ کا سر ہے، آپ کی پوری اسکرین پر زوم کر کے پھیلا دیا گیا۔ یہ اس سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا منہ ہے، پورا کا پورا بند ہے، اور یہ اس کی ناک ہے، نتنا ہے، اور دوسری سائڈ میں اس کا دوسرا نتنا ہے۔ یہ اس کی ایک خصوصیت ہے، یہ ناک کو بھی بند کر سکتا ہے۔ اب ناک کو بند کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، ناک انسان نہیں بند کر سکتا، اس کو ہاتھ سے بند کرنی پڑتی ہے۔
बट ऊँट के केस में इसको ये कैपेसिटी दी गई है कि वो नाक को भी बंद कर सकता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि जब ये पानी पीता है तो फिर पानी पीने के बाद ये अपनी नाक को बंद कर लेता है, मुंह को बंद कर लेता है, और उस पानी की जो ठंडक है वो इसके दिमाग तक पहुंच जाती है, और इसकी जो पूरी बॉडी है वो ज़्यादा देर तक फिर ठंडी रहती है, क्योंकि ये गर्म इलाके का जानवर है, डेजर्ट में सफ़र करता है, तो ठंडक की इसको ज़रूरत पड़ती है। दूसरी वजह यह भी है कि जब रेत के तूफ़ान उठते हैं तो ये नाक बंद कर लेता है, हर चीज़ बंद कर लेता है ताकि रेत इसके नथनों में ना घुस जाए। ये नाक के पास थोड़ा सा इस साइड में कुछ अलग सी चीज़ है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस स्लाइड में हमने आपको नाक दिखानी थी, और नाक के पास ही ये इस तरीके से ये आँख है, इसको दूसरी स्लाइड में जाके डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट ये पैर हैं। आप देखिए यहाँ पर एक पैर रखा है ऊँट ने, लेकिन ये धंसा नहीं है, सिर्फ निशान पड़ा है रेत पर। अब ये नीचे क्यों नहीं जाता? बिकॉज़ इसके जो पैर हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये फ्लैट हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई बेंड नहीं है, कोई लचक नहीं है, बिल्कुल फ्लैट इसके पैर हैं। और ये जो कट आपको नज़र आ रहा है, ये कट, ये सिर्फ ऊपर से कट है, नीचे से ये पैर बिल्कुल फ्लैट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक फुटप्रिंट यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जब इसका वज़न पड़ता है, नीचे से फ्लैट पैर है, तो ये पैर इसकी एक बैलेंस बन जाती है। दैट इज़ वाई ये धंसता नहीं है इतना भारी होने के बावजूद। अपने माहौल के अकॉर्डिंग अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया है कि इसको सहरा के अंदर ही चलना है, ये सफ़ीना तो सहरा ही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो फिजियोलॉजी अल्लाह तबारक व तआला ने डिज़ाइन की है। देन ये आँख है, थोड़ी सी जूम करके है, और इस स्लाइड में शायद आपको ज़्यादा कुछ समझ ना आए, हम इस स्लाइड की तरफ देखते हैं। डेजर्ट विंडोज ऑफन ब्लो सैंड इन टू द एयर टू प्रोटेक्ट दियर आइज, कैमल्स हैव लॉन्ग आई लैशेस। अब जब ये जो रेत है, रेत के तूफ़ान उठते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ी बड़ी आई लैशेस कैमल को दी हुई है। दैट कैच मोस्ट ऑफ द सैंड, ज़्यादातर इन्हीं पर जमा होती है ये जो सैंड है। इफ़ सम सैंड गेट्स इनटू एन आई, थोड़ी सी अगर आँख के अंदर जाती भी है, ए कैमल हैज़ स्पेशल थर्ड आईलिड टू गेट इट आउट, और कैमल के पास तीसरी एक आईलिड है जो कि ये है, स्पेशल आईलिड है, कैमल के पास ही है, सिर्फ कैमल को दी गई है। ये उसको फिर रिमूव करता है इस आईलिड से बाकी सैंड को जो आँख में चली जाती है। लाइक ए विंडशील्ड वाइपर ऑन ए कार, द एक्स्ट्रा आईलिड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड वाइप्स द सैंड अवे। जिस तरीके से कार के अंदर फ्रंट में वो वाइपर लगे होते हैं, वो उसको साफ़ करते रहते हैं, ये जो आईलिड है इसका, ये उस वही काम करता है ऊँट के केस में। द आईलिड इज़ वेरी थिन सो द कैमल कैन सी थ्रू इट, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, थिन होती है, इसके अंदर से भी कैमल देख सकता है। अब कैमल देख भी रहा है, आँख खुली है लेकिन एक तरीके से बंद भी है, ट्रांसपेरेंट एक पर्दा। सुब्हानहू तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो अल्लाह तबारक व तआला बार बार फरमाते हैं कि वो अल्लाह पाक है इन चीज़ों से जिन लोगों को ये शरीक ठहराते हैं अल्लाह के यहाँ। तो कितना अजीम है वो रब जिसने इस तरीके से क्रिएशन की है। इन सैंड स्टॉर्म्स कैमल्स ऑफन क्लोज देयर एक्स्ट्रा आईलिड्स एंड कीप वॉकिंग। जब रेत के तूफ़ान उठते हैं तो ये आईलिड फैला देता है और रेत के तूफ़ान में चलता रहता है, इसको नज़र भी आ रहा होता है लेकिन आँख को डैमेज नहीं होता। यू माइट से दैट ए कैमल कैन फाइंड इट्स वे थ्रू ए सैंड स्टॉर्म विद इट्स आइज क्लोज्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि रेगिस्तानी जो रेत का तूफ़ान उठता है उसमें से भी कैमल चल सकता है, आँख खुली रख सकता है और आँख पे डैमेज भी नहीं हो सकता। कितनी अजीम क्रिएशन है अल्लाह तबारक व तआला की, सुभान अल्लाह। नाउ दिस इज़ कैमल एनाटॉमी। अंदर से जिस तरीके से एक्सरे स्किन होता है इस तरीके से एनाटॉमी है, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, हेड किस तरीके से है, टांगे किस तरीके से है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टांगे लंबी लंबी है, गर्दन भी लंबी है और ऊपर की तरफ ये कोहान है। अब ये कोहान जो ऊपर की तरफ यहाँ पर लगी हुई है इसमें से चर्बी जमा होती रहती है और सर्वाइवल के लिए जब इसको पानी नहीं मिलता या इसको खुराक नहीं मिलती तो वही चर्बी पिघल कर इसके जिस्म की ग़िज़ा बन जाती है। ये इसको एक्स्ट्रा एक चीज़ दी गई है।
एंड गर्दन और ये जो लंबी लंबी टांगे हैं इनका क्या राज है? एक तो ये ऊँट जब बैठता है तो इस तरीके से ही बैठता है, घुटने टिकाए इसी तरीके से ही बैठता है, ये साइड में नहीं बैठता, इसी तरीके से बैठता है। अब जब यहाँ पर कुछ बोझ लगाया जाता है, कुछ भारी भरकम चीज़ रखी जाती है, तो इसका वज़न जो है वो पीछे की तरफ हो जाता है। देन ये जो गर्दन है ये इसको फैला देता है और इसको ऐसे पुश करता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये ऊपर का हिस्सा उठना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। ये जो गर्दन, लंबी गर्दन है, एक स्प्रिंग का काम करती है ऊँट के लिए जब इस पर बोझ लदा जाता है। और दूसरा ये भी कि जब ये बैठता है तो ये जो सैंड है नीचे इस साइड में ये काफ़ी गर्म होती है, चूँकि ज़मीन इसकी गर्मी से इसका हेड जो है महफूज रहता है। एंड सेम इज़ द केस विद लेग्स। ये जब बैठता है तो इसका पेट भी है वो बचता है गर्मी से, और जब चलता है खड़े होके तो पेट तक गर्मी नहीं पहुंच पाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने परफेक्ट इसको डिज़ाइन के साथ पैदा फरमाया है। Now there is a research Dr. Fatin Abdul Rahman Khurshid, Associate Professor at the King Fahd Medical Research Center, Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Medical Center, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. He has determined that the camel urine contains nanoparticles which might be effective against certain types of cancerous cells. अब इस बंदे ने जो ऊपर आप नाम देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट है, एक मेडिकल प्रोफेसर है, इसने एक रिसर्च की है कि कैमल के यूरिन में उसका जो पेशाब होता है उसके अंदर कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ खास तरह की कैंसरियस सेल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द यूरिन आइडेंटिफाइड बाय इट्स कोड नेम PM701, इसको नाम दिया गया है उस इंग्रेडिएंट को जो उसके अंदर है। ये उस यूरिन के अंदर पाया गया है, और ये कुछ ह्यूमन ब्लड के ऊपर, सैंपल के ऊपर जिसके अंदर कैंसरियस सेल्स थे उसके ऊपर टेस्ट किया गया है। ह्यूमन के अंदर नहीं, ह्यूमन से निकाल के खून उसको लैब में टेस्ट किया गया है, तो ये इफेक्टिव साबित हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी बीमारी ऐसी नाजिल नहीं फरमाई जिसका इलाज भी नाजिल नहीं फरमाया है। तो इलाज तो है, इलाज तो है। अब इंसान उस तक कब पहुंच पाएगा, ये तो इंसान की फिर एफर्ट पे उस पे बात आ जाती है, वो कितना एफर्ट करता है, कितनी कोशिश करता है। जितनी वो कोशिश करेगा उतना वो इलाज को पा लेगा। तो ये कहना है कि कोई बीमारी है वो ला इलाज है, ला इलाज कुछ भी नहीं है। हर एक बीमारी का इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। अब इंसान को तलाश खुद करना है। एंड हो सकता है केमल यूरिन के बारे में हदीस भी है, इसको कुछ लोगों को पीने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, सीरत में ये वाक़या आपको मिल जाएगा। तो उसका दूध और ये यूरिन जब उन्होंने पिया तो वो ठीक हो गए थे। एंड हो सकता है इसी के अंदर, हो सकता है, मैं फिर भी ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर, हो सकता है इसी यूरिन के अंदर ही कैंसर का इलाज छुपा हुआ हो। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, दुनिया के कई ममालिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एंड हो सकता है इसी के अंदर कुछ, फिर इसी के ज़रिए से कोई मेडिसिन इसकी निकल आए, अल्लाह नोज़ बेटर। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। आयत की तरफ वापस आते हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिकत, क्या इन लोगों ने नहीं देखा ऊँट को किस तरीके से बनाया गया। अब तो हमने देखा किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, हर एक चीज़ परफेक्ट बैलेंस के साथ ऊँट को दी गई है। और ऐसा कौन कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाकी कौन कर सकता है इस तरीके का परफेक्ट डिज़ाइन बनाए। व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, क्या आसमान को नहीं देखते? आसमान को देखें, किस तरीके की छत है, कोई सुतून नहीं है। ज़मीन से ऊपर जो भी हिस्सा, जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी है, सब आसमान ही आसमान है। अब आसमान के मुतालिक दी कायनात सीरीज़ में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और दी कायनात सीरीज़ एंड होने के बाद हो सकता है आसमान के बारे में कुछ और भी इस चैनल पर ईद अर्ज़गा पर आए, क्योंकि आसमान बहुत बड़ी क्रिएशन है। एक्चुअली आसमान में ही सब बहुत सारे राज ऐसे छुपे हुए हैं। जहाँ तक आज कल की जो साइंस है, एस्ट्रोफिज़िक्स की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें, वो आसमान ही की खोज में लगे हुए हैं कि उस सारे राज यहीं पर छुपे हुए हैं। गौर करना चाहिए आसमान की क्रिएशन पर। बगैर छतों वाला ये नीला आसमान जो हमें नज़र आता है, किस तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर बादल भी हैं, बारिश भी बरसती है, बर्फबारी भी होती है, हवाएं भी इसके अंदर चलती रहती हैं। इसके अंदर से सूरज भी निकलता है, गर्मी भी देता है, रोशनी भी देता है, और हमें प्रोटेक्ट भी करता है।
ज़मीन को सर्वाइवल के काबिल भी बनाता है। क्या है ये आसमान, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। कौन है इसका खालिक, कौन है इसका क्रिएटर। इतनी बड़ी क्रिएशन, खुद वो क्रिएटर कितना अजीम, अल्लाहु अकबर कबीरा, कितनी बड़ी कितनी अजीम वो ज़ात है जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया है। वैलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, ये लोग ज़मीन पहाड़ को क्यों नहीं देखते किस तरीके से गाड़े गए। अब ये पहाड़ हैं, ये गाड़े गए हैं, ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे हैं। इतनी बड़े चट्टान, इतनी रॉक्स, इतने बड़े बड़े जिनके ऊपर चढ़ना इंसान के बस की बात नहीं होती। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पहाड़ दुनिया में मौजूद हैं। किस तरीके से इनको लगाया गया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। कौन ये कर सकता है? नोबडी, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। पहचानो अपने खालिक जुल जलाल रब्ब सुब्हानहू व तआला को पहचानो। वो रहमानुर रहीम, वो मालिकुस समावात, खालिकुस समावात वल अर्द, हर एक चीज का क्रिएटर, चप्पे चप्पे पर जिसका राज है, उसके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ इंसान, अपने खालिक को पहचान, उसकी क्रिएशन में गौर कर, तुझे क्रिएटर का पता लग जाएगा। वइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, क्यों नहीं देखता ये जमीन किस तरीके से हमवार की गई। ऐ गाड़ी चलाने वाले, ऐ लैम्बोर्गिनी फेरारी चलाने वाले, क्यों तो नहीं देखता कि ये जमीन किस तरीके से तेरे लिए फ्लैट कर दी गई, फैला दी गई, हमवार कर दी गई। ऐसा ना होता तो तू गाड़ी किस तरीके से चलाता, किस तरीके से चल पाता। अगर इसमें खुरदुरी चट्टानें रख दी जाती, पत्थर और डेजर्ट और बड़े बड़े अजीब व गरीब तरह की इसकी क्रिएशन कर दी जाती, किस तरीके से तू सर्वाइव करता। क्यों नहीं तुझे ये मालिक जुल जलाल का करम नजर आता है अपने ऊपर कि उसने तेरी जिंदगी के कैसे सामान मुहैया कर दिए। तू घर बनाता है, गाड़ियां चलाता है, सड़कें बनाता है, जिंदगी के ऐशो अशरत मजे उड़ाता है, फिर भी अपने उस रब्बे जुल जलाल के नाशुक्रा बनता है। फज़क्किर, आप इनको डराइए, पैगंबर से कहा जाता है। इनकी तज़कीर कीजिए, याद दहानी इनको कीजिए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप तो डर सुनाने वाले ही हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको ये कमांड नहीं दी गई कि आप इन पर डंडा बरसाएं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, अब जो मुंह मोड़ेगा और कुफर करेगा। इन क्रिएशन को देखकर अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाइए। मुंह मत मोड़िए, कुफर मत कीजिए। अगर इस अंधे कुएं में कहीं जाकर गिरे तो फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, बस अल्लाह तबारक व तआला का फिर अजाब है, और अजाब अकबर, बहुत बड़ा अजाब। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम दैट अजाब अकबर। इन्ना इलैना याबहुम, हमारी ही तरफ वापसी है। कहां तक भागेगा? जमीन में जायदादें बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, दौलत के अंबार लगाएगा, लोगों को गुलाम बना के रखेगा। एट लास्ट ही विल डाई। इन्ना इलैना याबहुम, लास्ट में हमारी तरफ ही आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम ही इसका हिसाब लेने वाले हैं। जिंदगी की सांस सांस का, जिंदगी के लम्हे लम्हे का, सेकंड और सेकंड का हिसाब इससे लेने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। I'll be back inshallah with some new videos in this the कायनात series जो कि प्लेलिस्ट है। till then take care and खुदा हाफिज।